fact, with that, more breaking news which is coming in. In fact, ahead of the hearing in the crucial Gyanvapi case, Times Now has managed to access important and very critical documents related to this case. A copy of the Waqf survey, which was conducted by the Uttar Pradesh government. This is way back in 1883 as well as 1936. These documents are here in Times Now. The mosque is said to have been registered. Now, the Muslim side accuses the court of ignoring this crucial bit of evidence. Listen in to what their allegation is. झूठ के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि इतने सीमे के अंदर झूठ बोला जाए। झूठ के आगे सब खुला मैदान है, लोग झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम जो है कोई चीज़ साबित नहीं कर पाए। अदालत में अपना पक्ष भरपूर रखा हुआ है कि जो यहाँ सर्वे हुआ था कि कौन कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस सर्वे के हिसाब से वक्फ नंबर 100 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के मस्जिद शाही आलमगीरी हल्का चौक बनारस में मकानात। इसको हिंदी में यहाँ ये तर्जुमा है 100 नंबर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अंदर में है मस्जिद शाही आलमगीरी हल्का चौक बनारस। जिस 2 किलोमीटर दूरी पे बात कर रहे हैं वो धरहरा मस्जिद है। आप चले जाइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उसमें है, रजिस्टर्ड है। So let me go across to Akanksha as well as Ashutosh, who are joining us live from Varanasi. Akanksha, to you first. This is quite explosive, right ahead of the crucial hearing which is going to be coming up. Now you have a claim by the Muslim side that they have documents which prove that the mosque was registered way back in 1883 as well as 1936, and it is part of the UP Waqf survey which was done of the time. Well, absolutely, and this is the reason why the Hindu sides wants scientific investigation to be done, and in fact carbon dating to be done on the shivling-like structure which was found earlier this year in the mosque complex. Now, carbon dating or no carbon dating is something that the court will likely decide today before it will hear the Muslim side on, in fact, the reply on the on some of the questions it had put forth in the last date of hearing. But before delving into case details, let me show you the visuals from outside the Varanasi court, which is going to hear this matter in just about few minutes. Now, I request my camera person to just pan to this side. There's huge police deployment here. These police personnel are holding lathis in their hand, and there are also tear gas shells that have been kept here in order to control law and order situation if something goes out of hand. So these are the preparations that the police officials have done. There are tear gas shells right here, you can see on your screen. They're holding lathis in their hand, and in fact just few minutes back the Hindu side lawyer Hari Shankar Jain, Vishnu Shankar Jain and Muslim side's lawyer Rais Ahmed arrived at the court. Now, outside the court on this road, no vehicle is allowed to be stationed. Whosoever is going inside the court is being checked thoroughly by the police. So these are the sort of preparations that the police has made ahead of this crucial verdict if it comes to. Now, this comes after a bomb threat call was made at this court ahead of this crucial verdict. But if you talk about the case, Hindu side has demanded scientific investigation and carbon dating to determine the age of this shivling-like structure. Absolutely. Muslim side has, however, opposed, saying that this goes against the Supreme Court order that Absolutely. In fact, let me go across to Ashutosh, who's joining us. Ashutosh, Places of Worship Act के context में ये बताइए कि कार्बन डेटिंग इतना क्रूशल क्यों है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अगर बात करें तो 1993 के पहले से भी हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहाँ पर मां श्रृंगार गौरी की नियमित तौर पे पूजा अर्चना होती रही है। अब 1993 के आसपास जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और उसके बाद सिक्योरिटी के पर्पज से वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई, और बैरिकेटिंग के दूसरे तरफ जो मां श्रृंगार गौरी का है वो मूर्तियाँ वहाँ पर भी स्थापित कर दी गई, और उसके बाद वहाँ पर भी चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन ही सिर्फ दर्शन करने की इजाज़त थी। ऐसे में जब 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल एक याचिका दाखिल की और पूजा के अधिकार के तहत ये कहा कि हमें श्रृंगार गौरी माता के नियमित दर्शन पूजन की इजाज़त दी जाए, और उसी को लेकर जब वहाँ पर वजू खाने के पास एक आकृति मिली जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष ये कहता है कि वो शिवलिंग है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फव्वारा है। इन सब के बीच में देखिए अब उसकी सच्चाई कैसे निकलेगी
ये सब कुछ कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग या अन्य कोई जो साइंटिफिक मेथड है उसको लेकर अब बात हो रही है, और उसी को लेकर आज वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई होने वाली है। तो कितना ये अहम मसला है, क्यों आपको लगता है कि कार्बन डेटिंग या अन्य कोई साइंटिफिक मेथड है उसकी जरूरत है? हाँ, दरअसल आखिर फैसला कैसे होगा? मुस्लिम समाज ये कहता है कि फुहारा है, हम हिंदू पक्ष के लोग, सनातन धर्म के लोग, मंदिर समर्थक ये कहते हैं शिवलिंग है। आखिर इसके लिए कोई न कोई वैज्ञानिक प्रणाली होनी चाहिए। कार्बन डेटिंग या कोई वैज्ञानिक प्रणाली जो शिवलिंग को बिना छुए, बिना क्षतिग्रस्त किए, बिना कोई भी उसको, इसलिए वैज्ञानिक को कोई प्रणाली जो अयोध्या में सर्वमान्य प्रणाली थी, जो उस इसे होना ही चाहिए। देखिए, हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी हैं। मुस्लिम साइट ने आज एक डॉक्यूमेंट्स पेश किया है और उसका ये कहना है कि 1936 में जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड का सर्वे कराया जा रहा था, तो जो ज्ञानवापी की प्रॉपर्टी है वो बाकायदे वक्फ बोर्ड के जो संख्या है 100 के रूप में दर्ज है, और बाकायदे उसमें लिखा है कि आलमगीर या ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पे। देखिए, अगर कोर्ट मान लिया होता कि वक्फ की संपत्ति है तो ये 7 रूल 11 जो प्रार्थना पत्र था वो स्वीकार हो गया होता उनका, और हमारा वादा ही खारिज हो जाता। यानी कि कहीं न कहीं कोर्ट ने माना कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, आलमगीर मस्जिद नहीं, ये ज्ञानवापी मस्जिद विश्व जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है सारी दुनिया जानती है, और वक्फ जो 100% नंबर में दर्ज है वो कहीं और देहात अमानत जो है 100 नंबर दिखा रहा है, इनका मड़वाड़ी क्षेत्र दिखा रहा है, जबकि ये दशाश्वमेध वार्ड में है। तो इसके साथ ही वो 1883-84 का एक मैप भी दिखा रहे हैं जो बाकायदे अटेस्टेड है भारत सरकार की ओर से। उसमें ये दर्ज किया गया है कि नहीं प्लाट संख्या 9130 पर वहां पर मस्जिद है, कहीं नहीं दर्ज किया गया। ये 2012 में जो है ये कूट रचित तरीके से, चूंकि इनको दिखाना था, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कि ज्ञानवापी जो कथित मस्जिद है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाने के लिए 2012 में जो अपने रजिस्टर में स्वयं कहीं के सरकारी दस्तावेज में नहीं है ये इन्होंने दर्ज कर लिया कि ये आलमगीर मस्जिद है, जबकि दुनिया जान रही है कि अब देखिए सुधीर जी भी है। सुधीर जी, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमें कोर्ट पर अब विश्वास नहीं है, क्योंकि कोर्ट का बस चले तो मुसलमानों को भी देश से बाहर फेंक दे। ऐसा उनको विश्वास तो उनके खुद पर भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती हो गई है। दौरान बहस उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में कहा गया कि माना कि औरंगजेब ने तोड़ के बनवाया है, औरंगजेब उस समय का बादशाह था और पूरी संपत्ति औरंगजेब की थी, तो औरंगजेब तो रहे नहीं। अब आशुतोष, उनसे ये भी पूछिए कि आज जब कोर्ट अभी अपना फैसला देने वाला है कार्बन डेटिंग पे, अगर इसमें आया कि ये मस्जिद था और ये मंदिर नहीं था तो उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? हिंदू पक्ष क्या एक्सेप्ट करेगी जो भी कोर्ट से आए? ये भी अगर बोला जाए कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। Seems like we've lost that audio connection with Ashutosh. We'll try and go back to him. He's of course speaking to the Hindu petitioners, but it's important for us to listen in once again to what exactly the allegations have been coming in from the Muslim side. We are going to play out the soundbite that we just got for you, which says that they have UP Waqf survey reports. This dates back to 1883 as well as 1936. They say in this survey, it very categorically says that the plot number 9130 is actually a mosque. This is there categorically as per the Muslim side in 1883 Waqf survey. However, they say that the court has not taken this document up and it has rejected